poets, and you know that we are doing history, and this is the matter of satisfaction for the students. I think that remember that today we are going to start the last part of class 6 NCERT history. The chapter name is building, paintings and books, and this is the part 2, which was the last one. After that we will start SST or history of class 7. Yes, history. Chapter number 12. Buildings, paintings and books. This is of NCERT and class 6. Also remember that this is part 2. In our previous lecture we have already done the part 1, in which we have discussed about the different type of buildings, including the iron pillar of Mehrauli, as well as the different buildings of temples, as well as stupas that were made of the mounds and the burnt or unburnt bricks. And we have also discussed about the paintings, especially from Ajanta and Ellora, and the techniques of these paintings, how they were forming. And after that, today we will start discuss about the books. Okay, so we'll start from the books, and the first point is the world of books. The world of books. तो अगर हम इसकी बात करें, बिल्डिंग्स, इमारतें, पेंटिंग, चित्रकारी तथा बुक्स, किताबें. Before delivering the topic, the world of books, किताबों का संसार. And we will discuss about the literature, especially of the southern part of India. This is the Tamil region. तो हम इसमें तमिल और दक्षिणी भारत के बारे में जो है अधिकतर जो है स्टडी करेंगे. Before that, in our previous chapter we have discussed about the Sangam literature. Sangam literature, that is the collection of the 11 or 12 poets who were assembled at a particular place and deliver their views through poetry. This is known as Sangam, that is related to southern region, जिसका संबंध भारत के दक्षिणी हिस्से से है. But today we will discuss about the world of books, किताबों का संसार. We will discuss about some type of very important and major literature of India. First of all, there are two major epics of Tamil literature. First, Silappatikaram. Poet is Ilengo, composed about 800 years ago. Okay, Silappatikaram, that is the very important and major literature of southern region. If we will talk about the Tamil literature, and the poet name is Ilengo, that is composed by very famous poet Ilengo about 1800 years ago. And remember that this is the story of merchant of Puhar
named Kavlan, who fell in love with prostitute named Madhvi, ignoring his wife Cunning. So this is the story of a merchant of Pohar named Kauran who fell in love with a prostitute named Madhvi, ignoring his wife Kanhi. ये कहानी है एक व्यापारी की, पोहार का जो रहने वाला था, नेम कॉवलैंड, और इस कहानी का जो नायक है उसका नाम था कॉवलैंड, हु फेल इन लव विद प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट होती है वेश्या, जो एक वेश्या के साथ प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है, जिसका नाम था माधवी, इग्नोरिंग हिज वाइफ कन्ही। हालांकि वो मैरिड था लेकिन अपनी वाइफ को, पत्नी को इग्नोर करते हुए, जिसका नाम कनगी था, उसका प्रेम प्रसंग जो था एक वेश्या के साथ पड़ गया जिसका नाम था माधवी। ओके, एंड सून आफ्टर दैट माधवी कनगी एंड कोवलैंड लेफ्ट पोहार एंड सेटल्ड इन द अनदर रीजन नेम्ड माधवी। तो कुछ समय के बाद तीनों ये अपना पोहार जो स्थान है उसको छोड़कर माधवी में सेटल हो जाते हैं। ओके, एंड व्हाट हैपेंड देन, देयर कोवलैंड वाज अक्यूज्ड इन थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग एंड द किंग सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। वहाँ पर जो पांड्या शासन होता है, पांड्या शासन के राजा का जो ज्वेलर है, जो रत्नकारी होता है, वो उसके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा देता है एंड द किंग सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, और राजा उसको मौत की सजा सुना देता है। एंड आफ्टर दिस कनगी वाज फिल्ड विद fear, terror and anger, so he burnt all the city of Madri, who still was loving to his husband Kavlan। और इस घटना के बाद जो कनगी होती है वो माधुरी का जो वो सारा एरिया शहर होता है उसको आग लगा देती है, क्योंकि उसके पति के साथ जो अन्याय हो रहा होता है उसको वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती। सो दिस इज द स्टोरी, वेरी फेमस स्टोरी इन तमिल लिटरेचर ऑफ शिलापतिकरण and written by, composed by Elengo about 1800 years ago. Okay, now we'll talk about the second epic, epic name is Manimekalai, composed by Satnar about 1400 years ago. And the second very famous Tamil literature or epic जो होता है, this is known as, इसको हम महाकाव्य कह सकते हैं। महाकाव्य like Ramayana and Mahabharata, these are also epics of a Indian subcontinent, and these are the epics of Tamil literature in southern region. So this is the second one, known as Manimekalai, composed by the poet Satnar about 1400 years ago, and we can say that this is the second part of the first epic that we have done, शिलापतिकरण। ये उसका दूसरा हिस्सा है। This is the story of, this is the anti-love story of daughter of Madhuri and Kaur। तो ये एक एंटी लव स्टोरी, एक प्रेम के जो विपरीत कहानी है, ऑफ अ डॉटर ऑफ माधवी एंड कॉवलन, जो फर्स्ट पार्ट में शिलापतिकरण में हमने पढ़ा था।
जो मालवी और कौंडिन्य के बीच में प्रेम प्रसंग था, और उनमें से जो उनकी बेटी हुई उसकी लाइफ के ऊपर ये आधारित जो है स्टोरी लिखी गई। एज वेल एज we'll also talk about some other books that were written in the same period, okay, and that are very ancient, like Qurans. Some important books that were written during this period. Quran. Quran. Quran literally means old one or ancient. जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि पुराण, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरली इसका जो मीनिंग है ओल्ड वन, पुराना, या फिर एंशिएंट, प्राचीन। These are the sacred books related to Hinduism and about the gods and goddesses, like about the worship of God and goddesses, like Shiv, Vishnu, Durga, Parvati, etc. Okay, and these books were reading by the priests in the temples for the people, and even the women and the Shudras can also study these books, which were not allowed to study the Vedas. और उस समय जो औरतों और शूद्र जाति, जो सबसे निम्न जाति गिनी जाती थी, जिसका नंबर 4 पे आता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. Shudra was the very lower caste counting at that time, which work was to serve the upper 3 classes, जिसका काम था ऊपर वाली 3 क्लासों की सेवा करना. तो उनको भी और औरतों को भी इसको स्टडी करने का, इसको सुनने का अधिकार था, कुरान को. ओके, जबकि उनको वेदों की स्टडी करने का अधिकार उस समय नहीं था. वेदास दैट वर द सैक्रेड, यू कैन से दैट सैक्रेड होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, like Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. About it we have already discussed in our previous chapters. And we will also study about the book Bhagavad Gita. About Bhagavad, that is based on the preaching by Lord Krishna to his friend and devotee Arjuna on the battlefield of Kurukshetra in Mahabharata. About the mystery of life and soul. So we're talking about
Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, that is the sacred book, we know that is based on the preachings of Lord Krishna. जो वो एक प्रचार किए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा टू हिज फ्रेंड एंड डिवोटी, उनका सखा मित्र और उनका अनुयायी जो था अर्जुन, जिसको बैटल फील्ड युद्ध के मैदान पे कुरुक्षेत्र में महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने जीवन संसार और आत्मा का रहस्य समझाया, दिस इज नोन एज भगवद गीता. दैट इज आल्सो अ sacred book which was very popular around this time, and we'll also study about the great epics of Mahabharata and Ramayana. Great epics which are very famous. Mahabharata and Ramayana. ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे दो जो बड़े महाकाव्य हैं, एपिक्स महाकाव्य. महाकाव्य जैसे हमने स्टडी करी है कि रामायण, महाभारत. देयर वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एपिक्स पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रबरदाई. ओके, तो महाकाव्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम प्रबंध काव्य या खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं. तो महाकाव्य का मतलब एक बहुत बड़ा काव्य, एक लंबी स्टोरी that also consider a lot of characters as well as the environment including there. इसमें काफ़ी ज़्यादा चरित्र और पूरी प्रकृति का वर्णन होता है, उसको हम लोग महाकाव्य कहते हैं. तो बहुत बड़े, और ये महाकाव्य जो है दिस शुड बी रिलेटेड टू अ हिस्ट्री. इट इज रिलेटेड टू अ हिस्ट्री जिसका संबंध किसी ऐतिहासिक घटना के साथ होना चाहिए, लाइक महाभारत एंड रामायण. These are the very ancient and old stories, but these has been written in the form which we know today around 1500 years ago. Okay, first we will study about Mahabharata. The war of Mahabharata was fought between Kauravas and Pandavas, who were cousins, who were controlling the throne of Kurus, whose capital was Hastinapur. It is composed by वेद व्यास. तो महाभारत की अगर हम बात करें, द वॉर ऑफ महाभारत वाज फॉट बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र के मैदान पर ये युद्ध हुआ था महाभारत का, जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जो आपस में कजन थे. और इस युद्ध का कारण क्या था? बिकॉज दे बोथ वर ट्राइंग टू कंट्रोलिंग द थ्रोन ऑफ कुरुस. दोनों ही कुरु राज्य के ऊपर, कुरु के सिंहासन के ऊपर अपना प्रभाव बनाना चाह रहे थे, उस पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे. whose capital was हस्तिनापुर, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी. इट इज कंपोज्ड बाय वेद व्यास. और महाभारत को जो कंपोज किया गया रिटन फॉर्म में, दैट इज कंपोज्ड बाय वेद व्यास.
Okay, and similarly now we'll talk about the epic of Ramayana. About Ramayana. Ramayana is the story of Prince Ram of Kosal, whose capital was Ayodhya, who was sent to exile with his wife Sita and brother लक्ष्मण. ओके, तो रामायण जो है वो एक कहानी है एक राजकुमार की जिसका नाम था राम. भगवान राम जिनके बारे में हम जानते हैं, अबाउट वी नो अबाउट लॉर्ड रामा. भगवान राम जो कि राजकुमार थे कौशल के, उस कैपिटल वाज अयोध्या, जिनकी राजधानी अयोध्या थी. हु वाज सेंट टू एक्साइल, जिसको हम कहेंगे वनवास, जिनको उनकी जो माता थी कैकेयी, उनके द्वारा वनवास को भेज दिया गया था विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण. एंड देयर सीता वाज abducted. Sita was abducted by the king of Lanka, named Raman. तो abducted means हरण कर लेना. तो सीता जो थी भगवान राम की पत्नी, राजकुमार राम की जो पत्नी थी सीता, वनवास के दौरान सीता का हरण कर लिया था लंका के राजा जिसका नाम रावण था, रावण के द्वारा. एंड प्रिंस राम हैज टू सेटल द क्वारल और वॉर अगेंस्ट द किंग रावण ऑफ लंका टू गेट हर बैक. वो अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसको लंका के जो राजा थे रावण, उनके साथ युद्ध करना पड़ा था. एंड he won this battlefield. इस युद्ध में उनकी जीत हुई. एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न टू अयोध्या, और उसके बाद वो अयोध्या वापस पहुंचे थे. ओके, सो इन दिस कंसेप्ट पीपल आल्सो सेलिब्रेट दीपावली इवन टुडे. और आज भी लोग उस दिन की याद में दीपावली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द स्टोरीज by the ordinary people. Our next point is stories by the ordinary people. Stories by the ordinary people. साधारण लोगों द्वारा निर्मित कहानी. So in this concept we will talk about the ordinary people also composed poem. Ordinary people also composed poems, sang songs, dance, and performed play.
also preserved some stories like Jataks and Panchtantra. तो जो साधारण लोग होते थे वो भी कई तरह की कविताओं को निर्मित करते थे, कविताओं का निर्माण करते थे, सैंग सॉन्ग्स, कई तरह के गीत गाते थे, डांस नाच करते थे, एंड परफॉर्म्ड प्ले, कई तरह के वो नाटक जिनका अभिनय वो खुद करते थे। दे आल्सो प्रिजर्व्ड सम स्टोरीज, और कुछ कहानियों को उन्होंने संग्रहित करके सुरक्षित भी रखा, लाइक जातक्स एंड पंचतंत्र विच आर वेरी फेमस टुडे, इवन टुडे, आज भी जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाइक दी पंचतंत्र स्टोरीज दैट इज फॉर दी लिटिल वंस और लिटिल किड्स, जिनको छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पंचतंत्र की कहानियाँ। एंड जातक्स वर दी स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू महात्मा बुद्ध, and they were kept preserved in these tombs as well as the railings of the path of these tombs, including also in the form of the pictures in the caves like Ajanta and Ellora in Maharashtra. तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, जो महात्मा बुद्ध के यादगारी चिन्ह रखे गए हैं जिनको स्तूप कहते हैं, उस तरह की बिल्डिंग्स में ये हम जातक की कहानियाँ पा सकते हैं जिनका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ माना जाता है। Now we'll talk about the writing books on science. Writing books on science. विज्ञान पर आधारित लिखित किताब। So here we'll talk about the great scientist as well as a mathematician and astronomer, great mathematician and astronomer Aryabhat, who written a book named Aryabhatiam. तो इसमें सबसे जो महान गणितकार और एस्ट्रोनॉमर जो हुए हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी, जिसमें कि he has cleared that the day and nights are occur due to the rotation of the earth on its axis. तो जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। Suppose this is the earth and we know that earth is rotating itself on its axis that is the imaginary line imagined by the scientist. विज्ञानियों ने ये इस लाइन की कल्पना की है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जो सेंटर से पास हो रही है धरती के, और धरती अपने ही धुरे पर घूम रही है। So day and nights are occurred due to the rotation of the earth around its axis. धरती जब अपने धुरे पर घूमती है तो उसके कारण ही दिन और रात बनते हैं। However, it seems that sun is rising and setting every day. लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य रोज उदय होता है और अस्त होता है। He also cleared some type of. He also described about the reasons of eclipses. इसके अलावा उसने हमें ये
जो है जानकारी दी कि एक्लिप्सिस जिसको हम ग्रहण कहते हैं, जिसमें अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के कारण क्या है और इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आर्यभट्ट ने उस समय दिया। He also described us the greatest the formula of the circumference of circle, which is very near to the formula which we are using today. Circumference of a circle. Circumference जिसको हम लोग पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। दिस इज द सेम थिंग, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे थोड़ा और आपको डिस्क्रिप्शन दे दे कि अगर ये सर्कल है, वी नो दैट हाफ दैट इज द रेडियस एंड इफ देयर विल बी फुल देन इट विल बी डायमीटर। तो ये इसका रेडियस है सर्कल का। तो इसका अगर हमने सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर निकालना है, इसका घेराव निकालना है सारा चारों तरफ से, इसकी बाउंड्री, तो हम लोग जो है फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आज का लेटेस्ट, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल that has been given by Aryabhatta. This is very close to the formula that we are using today. Okay, 2 pi r, जिसमें पाई की जो वैल्यू है वो हम काउंट करते हैं 22/7 और 3.14। ओके, सेम अगर इसके आगे हमने और फॉर्मूला भी है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालना तो पाई आर स्क्वायर ये यूज करते हैं। इसमें हमने किसी चीज का सर्कल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। एज वेल एज द नंबर सिस्टम आर देयर इन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस हैव आल्सो डेवलप्ड द फिगर 0। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। Mathematician invented the figure of 0. Firstly, start in Arabs and then in the whole world. जीरो की अगर बात करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइंड आउट की जीरो, और जीरो का हम महत्व जान सकते हैं कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा है। तो फर्स्टली स्टार्ट इन दी अरब्स, तो पहले ये अरबियों में शुरू हुआ जीरो का सिलसिला, और उसके बाद आगे स्प्रेड इनटू दी होल वर्ल्ड, ये आगे जाके पूरे संसार में फैल। ओके, हियर विल आल्सो डिस्कस about the Kalidas, the great poet of Sanskrit. We have already discussed in the previous chapter about that, this famous play अभिज्ञान शाकुंतलम। This famous play is Abhigyan Shakuntalam, the greatest love story. Abhigyan Shakuntalam, the greatest love story between the king Dushyant and young woman named
अभिज्ञान शकुंतला में एक प्रेम कहानी है राजा दुष्यंत और युवा और जिसका नाम शकुंतला था उनके बीच और राजा दुष्यंत के बीच। इसके बारे में हमने पहले भी पिछले चैप्टर में जो है ऑलरेडी हमने ये स्टडी कर ली थी। ओके, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द फेमस पोएम ऑफ कालिदास, मेघदूत। तो ये नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है, मेघदूत, मेघ, मेघ जिसको हम लोग बादल कहते हैं, और दूत, मेघ प्लस दूत से बना है मेघदूत। दूत जो संदेश वाहक होता है। And this poem has been settled in the way that the monsoon cloud is imagined like a messenger between the lovers who are separated from one another right now। तो ये मेघदूत कहानी जो है जिसमें बादल जो है, मॉनसून के जो बादल हैं उनको एक संदेश वाहक के रूप में संबोधित किया गया है, कल्पित किया गया। इसमें जो दो प्रेमी जो आपस में बिछड़ चुके हैं उनके बीच में जो दूत का, मैसेंजर्स का काम कर रहे हैं, दैट इज we can find this story in this poem, very well famous poem, Meghadoot। Okay, and at last we'll study about the invention of paper। About the invention of paper in China around 1900 years ago। चीन में 1900 वर्ष पहले and we can understand about the importance of the paper today as all the books that we read are printed on a paper। तो हम लोग कागज़ की उपयोगिता अपने आप में समझ सकते हैं आज के दौर में कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी लिटरेचर टेक्स्ट और जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं दैट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर, इनको एक कागज़ के ऊपर इनकी छपाई की जाती है। एंड here we will discuss about that the paper was invented in China about 1900 years ago। तो सबसे पहले जो था, मतलब ये कागज़ की जो खोज की गई थी चाइना में की गई 1900 वर्ष पहले की गई। सो द पर्सन who discovered it beat the fiber, rock, bark of trees, soaked in water, dried up, and pulp the paper। तो इस टेक्निक को जो अडॉप्ट किया गया था जिस पर्सन के द्वारा, बीट दी फाइबर, जो उस समय फाइबर्स थी, रोप, कुछ रस्सी, बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की छाल, और उसको सॉफ्ट इन वाटर, पानी में भिगोने के बाद ड्राइड अप, उसको सुखाया गया। एंड पल्प, पल्प इज द वेट मटेरियल, यू कैन से दैट पल्प इज द वेट मटेरियल।
और उससे जो एक वेट गीला मटेरियल मिक्सचर पैदा हुआ, उसको सुखाने के बाद, सॉल्ट करने के बाद जो है कागज़ का निर्माण हुआ। ओके, एंड स्टिल द मेकिंग ऑफ पेपर इज द टेक्निक इज द सेम टुडे। आज भी जो है कागज़ बनाने की तकनीक यही यूज़ की जाती है। एंड इट वाज केप्ट मिस्टीरियस फॉर द लॉट ऑफ सेंचुरीज। काफ़ी ज़्यादा सदियों तक इसको रहस्यमय रखा गया था। एंड आफ्टर दैट इट केम टू जापान, Korea, after that Baghdad, Africa, Asia, and the subcontinent. और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो ये कागज़ की तकनीक जो थी चाइना से चलती हुई आगे जापान, कोरिया, उसके बाद बगदाद पहुंची, फिर अफ्रीका, और उसके बाद एशिया, दैट इज़ द कॉन्टिनेंट, एंड आफ्टर दैट द सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद जो लाइका इंडिया, दैट इज़ द सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप तक की जो प्रक्रिया थी कागज़ बनाने की पहुँच चुकी थी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल from this chapter, and remember that today we have finished the syllabus of class 6 NCERT history, and our next lecture will start the history of class 7th. Okay, and if you are satisfied from our work, you are liking, so please like and subscribe our channel,